مرکزی حکومت نے امید پورٹل پر وقف اثاثوں کے اندراج کے لیے مزید 3 ماہ کی مہلت دینے کا اعلان کیا۔ وقف اداروں کے ذمہ داران نے راحت کی سانس لی۔ وقف اثاثوں کے امید پورٹل پر اندراج کی 6 ماہ کی مقررہ مدت جمعہ کو ختم ہو رہی ہے، لیکن ملک بھر میں لاکھوں اثاثے امید پورٹل پر ریکارڈ نہیں ہوئے ہیں۔ مرکزی وزیر برائے اقلیتی امور کرن رجیجو نے جمعہ کو ایک بیان جاری کرتے ہوئے کہا کہ ملک میں لاکھوں جائیدادیں ابھی بھی پورٹل پر اپلوڈ نہیں ہوئی ہیں۔ متعدد ارکان پارلیمنٹ، سماجی رہنماؤں اور وفد کے نمائندوں نے مہلت مانگی ہے اور توسیع کا مطالبہ کیا ہے۔ انہوں نے بتایا کہ سپریم کورٹ نے 6 ماہ کی مدت مقرر کرتے ہوئے اسے براہ راست بڑھانے کی اجازت نہیں دی تھی، اسی لیے حکومت تاریخ میں توسیع نہیں کر سکتی۔ انہوں نے یقین دہانی کروائی ہے کہ جو لوگ اندراج کی کوشش کرتے رہیں گے ان کے خلاف آئندہ 3 ماہ تک کوئی سختی، جرمانہ یا قانونی کارروائی نہیں ہوگی۔ مرکزی وزیر کا کہنا تھا کہ ملک بھر سے شکایتیں موصول ہوئی کہ امید پورٹل کئی جگہ سست رفتار رہا اور بہت سے افراد مطلوبہ دستاویزات نہ ہونے کے باعث وقت پر رجسٹریشن نہیں کرا سکے۔ حکومت چاہتی ہے کہ ہر شخص بآسانی اپنی وقف جائیداد کا اندراج کرا سکے، اسی لیے رعایت دی جا رہی ہے۔ انہوں نے بتایا کہ سرکاری اعداد و شمار کے مطابق اب تک 1,51,000 سے زائد وقف اثاثے رجسٹر ہو چکے ہیں اور کرناٹک ریاست سب سے آگے ہے، وہاں پر 5,800 اثاثوں کا اندراج ہوا ہے۔ پنجاب، جموں کشمیر اور دیگر ریاستوں نے بھی اچھی پیش رفت دکھائی ہے۔ مرکزی وزیر نے واضح کیا کہ سپریم کورٹ کے مطابق 6 ماہ کی مہلت ختم ہونے کے بعد اگر کسی شخص کو مزید وقت درکار ہے تو وہ وقف ٹریبونل سے رجوع ہو سکتا ہے۔ وقف ٹریبونل کے پاس 6 ماہ تک کی اضافی رعایت دینے کا اختیار ہے۔ انہوں نے تمام ریاستی حکومتوں سے یہ پرزور اپیل کی ہے کہ وہ آئندہ ذمہ داری سے کام کریں اور وقف املاک کے اندراج میں شفافیت لاتے ہوئے تنازعات کم کرنے کا کام کریں۔ مرکزی حکومت کی جانب سے امید پورٹل پر وقف اثاثوں کے اندراج کے لیے 3 ماہ کی مہلت دینے کے بعد وقف اداروں کے ذمہ داران نے راحت کی سانس لی ہے۔ توقع کی جاتی ہے کہ ریاست تلنگانہ میں جلد از جلد تمام وقف جائیدادوں کا اندراج امید پورٹل پر کیا جائے گا۔ جو بھی تکنیکی خرابیاں پائی جا رہی ہیں اسے دور کیا جائے گا اور 1 سے زائد کاؤنٹرز مختلف مقامات پر لگائے جائیں گے اور لوگوں کی، خاص طور پر وقف اداروں کے ذمہ داران کی بھرپور مدد اور رہنمائی کی جائے گی۔ دبئی سے حیدرآباد آنے والی ایمریٹس کی پرواز کو بم کی دھمکی ملنے پر پائلٹ نے راجیو گاندھی انٹرنیشنل ایئرپورٹ پر طیارے کی بحفاظت لینڈنگ کی۔ ذرائع نے بتایا کہ دبئی سے حیدرآباد آنے والی ایمریٹس کی پرواز کو بم کی دھمکی دی گئی۔ دھمکی ای میل کے ذریعے آئی جس میں یہ بتایا گیا کہ پرواز میں بم ہے۔ بعد ازاں پائلٹ نے راجیو گاندھی انٹرنیشنل ایئرپورٹ پر طیارے کی بحفاظت لینڈنگ کی۔ تمام مسافرین کو پرواز سے نکال کر محفوظ مقام پر منتقل کیا گیا۔ سوشل میڈیا پر وائرل ویڈیوز میں بم اسکواڈ کو ہوائی اڈے کی تلاشی لیتے اور مسافرین کو پرسکون کرتے دیکھا گیا۔ آپ کو بتا دیں کہ 2 دسمبر کو کویت سے حیدرآباد جانے والی انڈیگو کی پرواز کو ای میل کے ذریعے بم کی دھمکی موصول ہوئی تھی، جس کے بعد پرواز کا رخ ممبئی کی سمت موڑ دیا گیا تھا۔ سابق وزیر تلاسانی سرینواس یادو نے کہا کہ پسماندہ طبقات جو آبادی کا نصف ہے متحد ہو کر حکومت کا تختہ الٹ دیں گے۔ سابق وزیر و صنعت نگر رکن اسمبلی تلاسانی سرینواس یادو نے گاندھی اسپتال پہنچ کر سائی ایشور کی مزاج پرسی کی، جنہوں نے BC ریزرویشن کے لیے پیٹرول ڈال کر خودکشی کی کوشش کی تھی۔ سابق وزیر نے ڈاکٹرز کو سائی ایشور کو بہتر علاج فراہم کرنے کو کہا ہے۔ انہوں نے حکومت سے سائی ایشور کے خاندان کو 50 لاکھ روپے کی مالی امداد فراہم کرنے کا بھی مطالبہ کیا ہے۔ تلاسانی سرینواس یادو نے میڈیا سے بات کرتے ہوئے کہا کہ اقتدار میں آنے کے بعد ریونت ریڈی کی حکومت نے 42% تحفظات فراہم کرنے کا وعدہ پورا نہ کر کے دھوکہ دہی کی ہے۔ انہوں نے کہا کہ نرمل ضلع میں سرپنچ امیدوار کے شوہر رویندر نے حکمران پارٹی کے قائدین کے مظالم سے تنگ آ کر خودکشی کر لی ہے اور کئی مقامات پر BRS کے قائدین کو ہراساں کیا جا رہا ہے۔ انہوں نے کہا کہ پسماندہ طبقات جو آبادی کا نصف ہے متحد ہو کر کانگریس حکومت کا تختہ الٹ دیں گے۔
आसिफ नगर SHO ने मिशन चबूतरा के तहत हिरासत में लिए गए अफराद को रात देर गए तक गली कूचों में इकट्ठे न होने का मशवरा दिया है। आसिफ नगर पुलिस ने मुख्तलिफ इलाकों में मिशन चबूतरा के तहत कार्रवाई की। रात देर गए तक गली कूचों में इकट्ठे होने वाले कई अफराद को हिरासत में लिया। बादशाह SHO आसिफ नगर ने हिरासत में लिए गए अफराद की काउंसलिंग की, उनसे गलियों में बैठने और वक्त गुजारने की वजूहात पूछी। SHO आसिफ नगर ने रात में गली कूचों में इकट्ठे होने से गुरेज करने की सलाह दी है। रियासत आंध्र प्रदेश के पालनाडु जिले में सरकारी अस्पताल के डॉक्टरों ने ऑपरेशन के बाद खातून की रान में ब्लेड छोड़ दी। मुतासरा के अफराद खानदान ने अस्पताल के रूबरू एहतजाज दर्ज करवाया। जराये ने बताया, पालनाडु जिले के नरसरावपेट के सरकारी अस्पताल में बालैया नगर की रहने वाली 22 साला खातून रमा देवी को भर्ती करवाया गया था। डॉक्टर्स ने खातून का ऑपरेशन किया। बताया जाता है कि ऑपरेशन के बाद खातून ने शदीद दर्द की शिकायत की और जब स्कैन किया गया तो ये पाया कि खातून की रान में सर्जिकल ब्लेड है। मुतासरा के लवाहिकीन ने डॉक्टरों की इस गफलत के खिलाफ अस्पताल के रूबरू शदीद एहतजाज दर्ज करवाया। गफलत बरतने वाले डॉक्टरों के खिलाफ कार्रवाई करने का मुतालबा किया। हिंदुस्तान में इंडिगो की सैकड़ों परवाजें मंसूख होने और ताखीर का शिकार होने से मुसाफिर परेशान। बच्चों समेत कई खानदान घंटों एयरपोर्ट्स पर फंसे रहे। मुल्क भर में इंडिगो एयरलाइन की परवाज़ों की मनसूखी और तवील ताखीर ने हज़ारों मुसाफिरों को परेशान कर दिया है। जुमा को इंडिगो एयरलाइन ने दिल्ली के IGI एयरपोर्ट से अपनी तमाम परवाज़ें निस्फ शब तक मनसूख करने का ऐलान किया, जिसके बाद दीगर शहरों में भी अफरा तफरी मच गई। आपको बता दें कि बंगल से अब तक इंडिगो की 1000 से ज़ायद परवाज़ें मनसूख हो चुकी हैं और कई दीगर एयरलाइंस की परवाज़ें भी ताख़ीर से चल रही है। 5 दिसंबर तक हैदराबाद से रवाना होने वाली 71 और हैदराबाद आने वाली 61 परवाज़ें मनसूख हुई हैं, जबकि बेंगलोर आने वाली 52 और बेंगलोर से रवाना होने वाली 50 परवाज़ों को मनसूख किया गया है। ठीक इसी तरह से दिल्ली आने वाली 90 और दिल्ली से रवाना होने वाली 135 परवाज़ें मनसूख हुई है। मुसाफिरीन में बेचैनी पाई जा रही है। वो दस्ता 12 घंटे एयरपोर्ट के अंदर बैठे रहने पर मजबूर है। बताया जाता है कि मुतादिद परवाज़ें अचानक मनसूख कर दी गई और कई घंटों की ताख़ीर के बावजूद वाज़ेह मालूमात फराहम नहीं की गई। मुसाफिरीन ने शदीद नाराज़गी ज़ाहिर करते हुए पूछा है कि अगर कंपनी को मसले का इल्म था तो टिकट्स फरोख्त क्यों किए जा रहे हैं। बेंगलोर, दिल्ली और दीगर शहरों में भी बड़ी तादाद में मुसाफिर फंसे हुए हैं। सैयद अजमतुल्लाह हुसैनी सदरनशीन तेलंगाना स्टेट वक्फ बोर्ड ने उम्मीद पोर्टल में वक्फ असासों के इंदराजात के कामों का मुआयना किया। तेलंगाना स्टेट वक्फ बोर्ड के दफ्तर में उम्मीद सेंट्रल पोर्टल पर वक्फ असासों का इंदराज किया जा रहा है। सैयद अजमतुल्लाह हुसैनी सदरनशीन तेलंगाना स्टेट वक्फ बोर्ड ने जुमा को वक्फ बोर्ड दफ्तर पहुंचकर उम्मीद पोर्टल पर इंदराजात के जारी कामों का मुआयना किया, अमले और लोगों से बातचीत की, तफसीलात भी हासिल की। उन्होंने तमाम इंदराजात को मुकर्ररा वक्त में मुकम्मल करने की हिदायत दी है। आपको याद दिला दें कि मरकजी हुकूमत की जानिब से वक्फ असासों के इंदराजात के लिए मज़ीद 3 माह की मोहलत दी गई है। हालांकि तेलंगाना स्टेट वक्फ बोर्ड की जानिब से उम्मीद पोर्टल पर इंदराज के सिलसिले में इक़दामात जारी हैं, लेकिन मुनासिब रहनुमाई न मिलने की वजह से मुतवल्लियान व इंतज़ामी कमेटियों के जिम्मेदारान को मुश्किलात पेश आ रही हैं। उन्हें मायूसी का सामना करना पड़ रहा है। अब जबकि मरकजी हुकूमत की जानिब से 3 माह की मोहलत दी गई है, तो इस मौके को गनीमत जानते हुए मुतवल्लियान और इंतज़ामी कमेटियों के जिम्मेदारान को जल्द अज जल्द उम्मीद पोर्टल पर अपनी जायदादों का इंदराज करना चाहिए। भारत फ्यूचर सिटी में 8 और 9 दिसंबर को मुनक्किद तेलंगाना राइजिंग ग्लोबल समिट की तैयारियां तकरीबन मुकम्मिल। मशहूर शख्सियतें और सनतकार इस ग्लोबल समिट में शिरकत करेंगे। तेलंगाना ग्लोबल राइजिंग समिट 2047 की तैयारियां मुकम्मिल हो गई है। 8 और 9 दिसंबर को
ये समिट फ्यूचर सिटी में मुनक्किद होने जा रहा है। ऑस्कर याफ्ता कंपोजर M.M. कीरवानी 90 मिनट का म्यूजिकल कंसर्ट पेश करेंगे और सनतकारों जैसे गौतम अडानी, मुकेश अंबानी, आनंद महिंद्रा, फिल्मी शख्सियतें जैसे सलमान खान, अजय देवगन व दीगर के इस मौके पर शिरकत की तवक्को है। आपको बता दें कि तेलंगाना हुकूमत ने दुनिया भर में 4800 दावतनामे भेजे हैं। सनतकारों, सरमायाकारों, सिफारतकारों और आलमी इदारों के नुमाइंदों को मदऊ किया है। इस समिट का मकसद रियासत की इंफ्रास्ट्रक्चर, टेक्नोलॉजी, तख्लीकी सलाहियतों, पायदारी और आलमी तिजारत की शराकतदारियों में रियासत की सलाहियतों को उजागर करना है। एसीबी ओहदेदारों ने नलगुंडा जिले के चंदूर मंडल में नायब तहसीलदार को रिश्वत मांगने और कबूल करने पर गिरफ्तार कर लिया। जराये ने बताया कि नलगुंडा के चंदूर मंडल के डिप्टी तहसीलदार चंद्रशेखर ने एक शख्स से सरकारी एहसान के बदले 20,000 रुपये रिश्वत का मुतालबा किया था। मुतासिरा शख्स की शिकायत पर कार्रवाई करते हुए एसीबी ओहदेदारों ने चंद्रशेखर को 20,000 रुपये रिश्वत तलब करने और रिश्वत कबूल करने पर गिरफ्तार कर लिया। रिश्वत की रकम चंद्रशेखर की कार के डैशबोर्ड से बरामद की गई। एसीपी ओहदेदार ने बताया कि चंद्रशेखर को गिरफ्तार कर नामपल्ली में एसीबी अदालत में पेश किया गया है। अदालत ने उसे तहवील में भेज दिया है। हैदराबाद के शेखपेट फ्लाईओवर पर नौजवानों ने खतरनाक मोटरसाइकिल स्टंट्स किए। मकीनों और राहगीरों ने नौजवानों के खिलाफ सख्त कार्रवाई का मुतालबा किया। हैदराबाद के शेखपेट फ्लाईओवर का एक वीडियो सामने आया है जिसमें चंद नौजवानों को मोटरसाइकिलों पर खतरनाक स्टंट करते देखा गया है। उनकी यह हरकतें न सिर्फ उनके लिए खतरनाक है बल्कि दीगर राहगीरों और मोटरसाइकिल सवारों के लिए भी ये मुश्किलात का बास बन सकती है। सोशल मीडिया पर वायरल वीडियोस में देखा जा सकता है कि नौजवान न सिर्फ तेज रफ्तारी से मोटरसाइकिलें चला रहे हैं बल्कि मुख्तलिफ खतरनाक करतब भी दिखा रहे हैं। उनकी लापरवाही के बाद कई राहगीरों ने धीमी रफ्तार में गाड़ियां चलाई ताकि कोई हादसा न पेश आए। इलाके के मकीनों और वहां से गुजरने वाले लोगों का कहना था कि रात के वक्त फ्लाईओवर पर इस तरह के स्टंट्स किए जा रहे हैं। आए दिन स्टंट्स के वाकयात में इजाफा होता जा रहा है और पुलिस को इस जानिब तवज्जो देने और इस तरह से खतरनाक स्टंट्स करने वाले नौजवानों के खिलाफ कार्रवाई करने की जरूरत है। बीजेपी रुकन असेंबली ए महेश्वर रेड्डी ने कहा कि अवाम से किए गए वादे पूरे न करके अवाम को धोखा देने वाली कांग्रेस हुकूमत को जीत का जश्न मनाने का कोई हक नहीं है। बीजेपी एमएलए ए महेश्वर रेड्डी ने तेलंगाना कांग्रेस हुकूमत को तनकीद का निशाना बनाते हुए कहा कि किसान, मजदूर, खवातीन तबका, बेरोजगार नौजवान, मुलाजमीन और वजीफेयाब अफराद दीगर 2 सालों से मुंतजिर है कि कांग्रेस के वादों पर अमल कब होगा। उन्होंने कहा कि रेवंत रेड्डी को अपने वादों पर अमल दरामद किए बगैर अवामी इंतजामिया की जीत का जश्न नहीं मनाना चाहिए। उन्होंने पूछा है कि वजीर आला रेवंत रेड्डी किस मुंह से अजला का दौरा कर रहे हैं और सरपंच इंतखाबात में कांग्रेस के उम्मीदवारों की जीत के लिए मुहिम चला रहे हैं। ए महेश्वर रेड्डी ने कहा कि कांग्रेस के 2 साल दौरे हुकूमत में हासिल की गई कामयाबियों का जश्न नहीं मनाना चाहिए बल्कि वादों को पूरा न करने का जश्न मनाना चाहिए। उन्होंने कहा कि अवाम से किए गए वादे पूरे न करके अवाम को धोखा देने वाली कांग्रेस हुकूमत को अपनी कामयाबियों का जश्न मनाने का कोई हक नहीं है। वजीर आला रेवंत रेड्डी को पहले अवाम से माफी मांगनी चाहिए। कुलहीन मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के नामपल्ली एमएलए मोहम्मद माजिद हुसैन के हाथों मेहदीपट्टनम में अल नादी मंदी हाउस अरेबियन रेस्टोरेंट का शानदार इफ्तिताह अमल में आया। हैदराबाद के मसरूफ तरीन इलाकों में शुमार किए जाने वाले मेहदीपट्टनम इलाके में अल नादी मंदी हाउस अरेबियन रेस्टोरेंट का शानदार इफ्तिताह अमल में आया। कुलहीन मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के नामपल्ली एमएलए मोहम्मद माजिद हुसैन ने कॉरपोरेटर डॉक्टर कासिम के हमरा मंदी रेस्टोरेंट का इफ्तिताह किया। इस मौके पर रेस्टोरेंट के मालिकान शेख कलीमुद्दीन, शेख एहतेशामुद्दीन के अलावा दीगर भी मौजूद थे।
वजीर आला रेवंत रेड्डी ने हुकाम को हिदायत दी है कि वो यूनिवर्सिटी के तरक्याती कामों के बारे में तलबा और तदरीसी अमले की राय हासिल करें। वजीर आला रेवंत रेड्डी 10 दिसंबर को उस्मानिया यूनिवर्सिटी का दौरा करने जा रहे हैं। उन्होंने जुमा को अपनी रिहाइशगाह पर एक जायजा इजलास मुनक्किद किया। हुकाम ने वजीर आला को उस्मानिया यूनिवर्सिटी में होने वाले तरक्याती कामों की तफसीलात बताई। वजीर आला ने मुख्तलिफ मॉडल्स के पावर पॉइंट प्रेजेंटेशंस देखे। हॉस्टल की इमारतों, सड़कों, एजुकेशन ब्लॉक्स और ऑडिटोरियम्स की तामीर में कई तब्दीलियां तजवीज़ की गई। उन्होंने हुकाम को हिदायत दी है कि वो यूनिवर्सिटी के अहाते के जंगलाती इलाकों में काम के लिए अर्बन फॉरेस्ट्री फंड्स के इस्तेमाल पर गौर करें और अहाता यूनिवर्सिटी में मौजूद आबी ज़खायर के तहफ़्फ़ुज़ के इक़दाम करें। उन्होंने कहा है कि वो उस्मानिया यूनिवर्सिटी की तरक्की के लिए रकम खर्च करने में ज़रा भी नहीं हिचकिचाएंगे। वज़ीर आला ने यूनिवर्सिटी के अहाते में मौजूद तारीख़ी और विरसा की इमारतों को महफूज रखने को कहा है। याद रहे कि वज़ीर आला रेवंत रेड्डी 10 दिसंबर को उस्मानिया यूनिवर्सिटी का दौरा करेंगे। वो एजुकेशन ब्लॉक्स और हॉस्टल्स का मुआयना करेंगे। उन्होंने हुकाम से कहा है कि वो यूनिवर्सिटी के तरक्याती कामों के बारे में तलबा और तदरीसी अमले की राय हासिल करें। तेलंगाना के वजीर पोंगिलेटी श्रीनिवास रेड्डी ने राघवा कंस्ट्रक्शन के खिलाफ मुकदमा दर्ज करने पर कहा कि चाहे वो मैं हो या मेरा बेटा, गलती करने पर सजा मिलनी चाहिए। साइबराबाद पुलिस ने राघवा कंस्ट्रक्शन, जो एक कंस्ट्रक्शन फर्म है, के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया है। राघवा कंस्ट्रक्शन रियासती वजीर पोंगिलेटी श्रीनिवास रेड्डी के फर्जंद पोंगिलेटी हर्षा रेड्डी की मिल्कियत है। इल्ज़ाम है कि मुबैना तौर पर गंडीपेट में जेसीबी के जरिए कुछ इमारतों को नुकसान पहुंचाया गया। मुतासिरा शख्स ने उसके मुकर्रर करदा निगहबानों पर हमला किए जाने का भी इल्ज़ाम लगाया है और पुलिस में शिकायत दर्ज करवाई है। ये वाक़या 29 नवंबर को पेश आया। दोनों फरीक़ैन ने एक दूसरे पर जायदाद पर कब्जा करने का इल्ज़ाम लगाया है। रियासती वजीर पोंगिलेटी श्रीनिवास रेड्डी ने इस मामले पर अपना रद्द-ए-अमल ज़ाहिर करते हुए कहा कि ये दावा करना गलत है कि अपोजिशन ने मुकदमात दायर किए हैं। उन्होंने कहा कि चाहे वो मैं हो या मेरा बेटा, गलती करने पर सजा मिलनी चाहिए। पोंगिलेटी श्रीनिवास रेड्डी ने कहा कि मुकदमा दर्ज होने के बाद जब हक़ाइक़ मंजर आम पर आएंगे, जब तहक़ीक़ात मुकम्मल हो जाएगी तो ज़िम्मेदारान के खिलाफ कार्रवाई होगी, उन्हें सजा दी जाएगी। और दीगर डॉक्टर्स नुमाया खिदमत अंजाम दे रहे हैं। रोबोटिक सर्जरी, एडवांस कैथ लैब, MRI, ऑपरेशन थिएटर, ICU, 2D अल्ट्रासाउंड जैसी सहूलियात से आरास्ता कॉर्पोरेट लेवल हॉस्पिटल। वाजबी फीस में हर मर्ज से शिफायाबी के लिए जर्मन 10 सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, अतापुर।